Hello students, today we will start section formula, next topic of coordinate geometry. What does this word mean? Section means divide, or you can say parts also. 10th क्लास के कौन से सेक्शन में हो? इट मीन्स पूरी 10th क्लास के कुछ पार्ट्स किए हुए हैं, ABCD, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट में हम यूज करेंगे। लेट AB be a line segment whose point A, whose coordinates are x1, y1, this point A. This is a line segment AB whose coordinates are x2, y2. Let P be any point on this line segment whose coordinates are x and y. This P point divide this line segment AB in the ratio m1 is to m2. Then by section formula we can find this point or coordinates of point P. What is it? What is the section formula here? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is x coordinate for this point P, and y coordinate same, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. You have to learn this formula, okay? See here, m1 x2 क्रॉस में जो रेशो है ये आपको गिवन है m1 और P भी गिवन है m2, ठीक है। ए बी कोई पॉइंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, P कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी पे जो इसको डिवाइड करता है m1:m2 के रेशियो में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y फाइंड कर सकते हैं। कैसे लगेगा? m1 x2 इसका x कोऑर्डिनेट, देन प्लस m2 ये रेशियो x1 इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन में सम ऑफ दीज टू रेशियोस, ओके। फॉर y कोऑर्डिनेट इट इज आल्सो सेम, m1 y2 क्रॉस में जाना है, m1 फर्स्ट रेशियो कोऑर्डिनेट्स इसका b का y2 एंड m2 y1 upon में sum of the ratios that which is m1 plus m2. एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. It will be x coordinate of this point. Then y coordinate m1 y2 plus m2 y1 upon में m1 plus m2. इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में भी नहीं है बेटा, वैसे हमें करना होता है, हम करवाते हैं क्लास में, लेकिन इसके प्रूफ में हमें यूज करना कंसेप्ट सिमिलर ट्रायंगल का, जो हमने अभी तक किया नहीं। जब आपको सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट हो जाएगा फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ओके। नाउ यू हैव टू लर्न जस्ट दिस फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट है इसका स्पेशल केस सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हेन अ लाइन सेगमेंट ए बी, point A whose coordinates x1 y1, point B whose coordinates x2 y2, and point P lie in the mid of this line segment, exactly center P xy. If AP is equal to PB, midpoint means ये mid में है, ये length और ये वाली length equal है, means AP is equal to PB. तो उस टाइम पे हम बोलते हैं रेशियो क्या है बेटा? 1:1। जब AP और PB इक्वल हैं तो रेशियो क्या लेंगे हम हमेशा? 1:1। जब रेशियो 1:1 हो जाएगी तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 यानी कि P पॉइंट क्या हो जाएगा? m1 x2, 1 into x2 means
x2, m2 x1, 1 into x1 upon sum of these two ratio 1 plus 1 2. Then for y coordinate 1 into y2 यानी कि m1 y2, it will be y2, m2 y1 means 1 into y1 which is y1 upon में sum of the ratios 1 plus 1 which is equal to 2. See, it is midpoint formula, or you can say x1 plus x2 upon 2 into y1 plus y2 upon 2. We can use this formula directly here. Midpoint formula x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now we will start first question of exercise 7.2. Find the coordinates of the point, कोई point है जिसके हमें coordinates find करने हैं, which divides the join of these two points in the ratio 2:3. Let the required point be P. Required point be P, whose coordinates are x and y. We have to find these coordinates. This point divides the join of these two points. Let the point, this is A, whose coordinates are -1 and 7, and next point let it be B, and whose coordinates are 4 and -3. This is given to us. This point P divide this line segment in the ratio 2:3. This point P divides the line in the ratio 2:3. Then how we can calculate these coordinates here? By using section formula. So what is section formula? By section formula. In every question you have to write the formula, okay? Then what is it? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. And y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is clear? Learn हो गया? Then put the values. What is m1 here? ये m1 है. And what is m2 here? 3. ये m1, ये m2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. Now apply formula here. Then point Pxy will be m1 x2 means 2 into 4. 2 into 4. चलो पहले से राइट कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे. m2 x1 plus 3 into -1. Okay. Then sum of the ratio 2 plus 3, comma, then for y coordinate ऐसे ही करना है. m1 y2 means 2 into -3 plus m2 y1 means 3 into 7 upon में sum of the ratios which is 2 plus 3. Now solve it. 2 into 4 will be 8. 3 into -1 -3. 2 plus 3 5. 2 into -3 -6. 3 into 7 it will be 21. 5. Then coordinates will be 8 minus 3 5 upon 5. 21 minus 6 15 upon 5. Simplest form में convert करो. 1 and it is 3. It means coordinates are 1 and 3. So
point P, required point will be 1, 3. Okay. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining these points. Coordinates find करने हैं वो भी points के of trisection of line segment joining the points. Ratio is not given to us. Without giving ratio, we have to find the points, and by using section formula, then how we will calculate it? पहले आप इसका मतलब समझो. Trisection, what is it? Trisection means, bisect means divide in two equal parts. Trisect means divide into three equal parts. Like this is AB, and this point is P, and this point is Q. क्या हमने AB लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? एक पार्ट ये है AP, एक PQ और एक QB. हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, AP, PQ एंड QB. तीनों इक्वल पार्ट्स हैं. अब ये कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स हैं ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P के और Q के. देखो बेटा, हमें यहाँ रेशियो गिवन नहीं है, हमें रेशियो यहाँ अपने आप बनानी है. हमें क्या गिवन है कि इस लाइन के ये थ्री इक्वल पार्ट्स हैं. सेक्शन फॉर्मूला में हम इन इक्वल पार्ट्स को 1:1 काउंट करते हैं. क्या रेशियो लेंगे हम इनका? 1. अगर हम मान लो, अगर हमें नहीं गिवन कि कितना कितना पार्ट्स है, अगर आप ऐसे लेते हो x, ये भी x ले लिया, ये भी x ले लिया, तो AP अपॉन PQ अगर आप कंसीडर करोगे तो x अपॉन x रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 ही आ जाएगा. इसलिए हम पहले से ही रेशियो क्या कंसीडर करके चलते हैं? 1. ओके. और अगर मुझे रेशियो फाइंड करना हो AP अपॉन PB, मीन्स अगर मैं Q को ना देखूं, PB, ये P पॉइंट जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? A, दिस पॉइंट P और दिस B. अगर हम Q को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा? P किस रेशियो में डिवाइड करेगा AB को? AP, PB. AP एक पार्ट है विच इज इक्वल टू x, और PB कितना है? टू पार्ट्स हैं, x प्लस x, इट विल बी 2x. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या बन गया? 1:2. मीन्स रेशियो क्या हो जाएगी? 1:2. ऐसे ही अगर हम P को इग्नोर कर दें, AQB, तो रेशियो क्या होगी? AQ अपॉन BQ. फिर से ये टू पार्ट्स हैं, x प्लस x मीन्स 2x, और QB कितना है? x पार्ट. तो आपके पास रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1. इट मीन्स what I want to explain you, अगर हम ये x का कोई चक्कर ही ना डाले यहाँ पे, अराउंड 1:1 की रेशियो लेंगे बेटा, क्योंकि रेशियो में कैंसिल आउट होके 1 ही आना है. ओके. तो हमारा जो P पॉइंट है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2. फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P we will use the ratio 1:2. And for Q point, ratio will be 2:1. So हमने रेशियो फाइंड कर ली. अब हम ये पॉइंट्स हमें गिवन है AB और BB. रेशियो भी हमारे पास है दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए. हम यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं P के भी और Q के भी. एक बार P के लिए हम यूज करेंगे 1:2. Q के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? 2:1. क्या Q के लिए हमारे पास कोई और मेथड भी हो सकता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या हम किसी और मेथड से Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? अगर हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए यहाँ पे
by ignoring Q, तो रेशियो हमारा क्या हुआ 1:2 और हमने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ऐसे ही हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स दिए। देन Q के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम बात करें सिर्फ PB की, अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ये रेशियो क्या है 1:1। अब यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, हम ऐसा ही करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में। एक बार हम सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके लाएंगे, फिर ये Q क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ PB। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो हम सीधा यहाँ मिड पॉइंट से Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ओके, अंडरस्टूड द कंसेप्ट? नाउ वी विल डू क्वेश्चन हियर। Find the coordinates. Let the required points B, P and Q. P and Q. P is x, y and Q के भी कुछ ले लो वही पॉइंट, x1, y1 और x2, y2 ले लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नाउ फिगर जरूर बनानी है आपको हर क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट दिस पॉइंट इज A, whose coordinates are 4 and -1, and this point is B, whose coordinates are -2 and -3. There are 2 points which bisect this line segment. P, whose coordinates are x1, y1, and Q coordinates are x2, y2. So ratio for coordinate P will be 1:2. I hope you understood this concept here. ठीक है? For finding coordinates of P, ratio will be 1:2. We will use this. Okay, then P x1 y1 will be equal to m1 x2. अब Q को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं ना, इस Q को इग्नोर कर दो, जैसे कि Q यहाँ है ही नहीं, बैठा ही नहीं है। ओके, m1 x2 which is equal to 1 into -2, m2 x1 which is 2 into 4 upon में sum of the ratios 1 plus 2. Okay, again for y coordinate m1 y2 1 into -3 plus m2 y1 2 into -1 upon में m1 plus m2. Now it will be -2, 1 into -2 is -2 plus 2 into 4, 8, 2 plus 1, 3, 1 into -3, it will be -3, 2 into -1, -2 upon में 3. Then coordinates will be 8 minus 2, 6 upon 3 and it is -5 upon 3. Then P coordinates of P will be 2 into -5 upon 3. अब हमारे पास क्या आ गए P के कोऑर्डिनेट्स 2 into -5 upon 3. Now we have to calculate the coordinates of Q, x2, y2. Then we will use midpoint formula here. What is midpoint formula? You have to write section formula also by midpoint formula. What is it? Have you remembered? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 means
x1 is 2, x2 is minus 2. So coordinates of Q will be 2 plus minus 2 upon में 2 minus 5 by 3 plus minus 3 sum of x coordinate and sum of y coordinate. सिंपल है. minus 5 by 3 plus minus minus ही हो जाना है अपॉन में 2. सॉल्व करेंगे. 2 plus minus 2 0. 0 upon something 0. It will be 0. Here plus minus minus. Take LCM also. 3 3 जा 9. minus 5 minus 9 अपॉन में 3. इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 2 जा 6. Then it will be 0 minus 14 upon 6. Simplest form में कन्वर्ट कर दो. So coordinates of Q will be 0 and minus 7 by 3. यही करना था हमें. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे. P हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर लिया. Q हमने मिड पॉइंट से फाइंड कर लिया. ऐसा भी कर सकते थे कि हम पहले Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते. Q के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करते तो रेशियो क्या हो जाती 2:1 और फिर से P के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD. ABCD क्या given है? Rectangular school playground. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Means ये कितने flower pots रखे हैं at 1 meter के distance पे? 100. इट मीन्स ये एडी कितना हो जाएगा? यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एडी 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हर फ्लावर पॉट के बीच में कितना गैप है? 1 मीटर. और कितने फ्लावर पॉट्स रखे हैं? 100 मीटर. इट मीन्स एडी इज 100 मीटर. एडी कितना है? 100 मीटर. ओके. देन as shown in figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. निहारिका कहाँ है? सेकेंड लाइन में है और उसने कितना डिस्टेंस कर लिया है, कवर किया है? 1/4 ऑफ द AD. इस लाइन का 1/4 कितना हो जाएगा 100 का? 25 मीटर. इट मीन्स उसने अराउंड 25 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लिया इन द सेकेंड लाइन. ओके. एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. कैसे फ्लैग पोस्ट किया इसने? निहारिका ने ग्रीन. प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. 8th लाइन ये है. इसमें कितना डिस्टेंस किया है? 1/5 ऑफ द AD. एंड शी पोस्ट अ रेड फ्लैग. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इन दोनों फ्लैग्स के बीच में यहां ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है. You have to find distance between them. And what is the, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें इसके हाफ में और इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लें. लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. ओके. इसके मिड पॉइंट में कहीं भी रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है. कैसे कलर का? ब्लू. वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो वो कहां पर पोस्ट करे अपना फ्लैग? उसकी पोजीशन बतानी. यानी कि आपको कोई और पॉइंट काउंट कैलकुलेट करना M, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो मिड पॉइंट में कहां पर होगा. ओके. निहारिका ने कहा कौन सा फ्लैग पोस्ट किया है? ग्रीन. कौन सी लेन में चल रही है वो? सेकेंड लेन में. और प्रीत कौन सी लेन में चल रही है? 8th लेन में. और उसने कैसा फ्लैग पोस्ट किया है? रेड. अब हम क्या देखते हैं? पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका.
कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है सेकेंड लेन में, 1/4 ऑफ AD एंड व्हाट इज AD हियर, 100 मीन्स 25 मीटर। AD कितना है 100 मीटर, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 25 मीटर। इट मीन्स इसने सेकेंड लेन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये 25। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत कितना है, 1/5 ऑफ AD which is equal to 1/5 of 100 means 20 मीटर इन 8th लेन। 8th लेन में प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर। अब हमें डिस्टेंस ये गिवन है 25 और ये है 20, बट वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड फॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, हमें तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मुझे तो इस P पॉइंट की पोजीशन चाहिए, एक्चुअल पोजीशन इसमें। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी लेन है, सेकेंड। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट 25। सिमिलरली फॉर द पॉइंट Q, कौन सी लेन है 8, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8 और y कोऑर्डिनेट 20। क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग किसने किया था, पोस्टेड बाय निहारिका, इज इक्वल टू P x1 y, P ले लो 2 into 20 to 25, and position of red flag posted by T is, let it be Q, and points are 8 and 20. Now first we have to find the distance between these 2 points. So you have to find PQ by using, how will we find PQ? Distance PQ किससे find करते हैं, by using distance formula। तो distance formula क्या होता है, distance formula will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। For PQ, x1 is 2, y1 is 25, x2 is 8 and y2 is 20। अभी वैल्यूज पुट करेंगे सभी, then what will be the answer, x2 minus x1 means 8 minus 2 whole square, y2 minus y1 20 minus 25 whole square, it will be 8 minus 2 is 6 and square क्या होगा 6 का 36, to 20 minus 25 it will be minus 5 and square of minus 5 will be 25 plus 25। okay, then add them, it will be root 61 units। so distance between PQ is root 61। now we have to find the point, midpoint of these flags, है ना, yes, halfway between the line segment joining 2 flags, where should she post her flag, let M be the midpoint of PQ। okay, so coordinates of M will be, let M is, हमने P के x1 x3 y3, let the coordinates of M is x3 y3। now use midpoint formula here, what will be the midpoint formula, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2।
मीन्स x1 क्या था 2, x2 क्या है 8, 2 plus 8 by 2 and y1 plus y2 is 25 plus 20 by 2. So coordinates of M will be 2 plus 8 10, 10 by 2 will be 5, 25 plus 20 45 by 2. So M coordinates जहां पर उसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है क्या हो जाएंगे 5, 45 by 2. So point will be 5, 22.5. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा thus the blue flag is on the fifth line. क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है फिफ्थ, इट मीन्स ये लाइन कौन सी है फिफ्थ, और एट अ डिस्टेंस पे कितना है 22.5. फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस 22.5 above it. इट मीन्स फिफ्थ लाइन में यहां पर होगा M और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22.5. ओके